Welcome children. In our last class we have discussed about the semi-conservative mode of replication of DNA and how it was proved by Mendelssohn and Stahl experimentally, the semi-conservative mode of replication. And today we will be discussing the mechanism of DNA replication, and first of all we will discuss the enzymes which are involved in the process of DNA replication. Okay, so let us first discuss. So the enzymes for DNA replication. So this DNA replication is not a simple process. This process is catalyzed by a group of enzymes, and here I will discuss only those enzymes which are given in your textbook. Okay, so children, these enzymes mainly catalyze the polymerization, the opening and rewinding and rewinding, unwinding of the DNA molecule, and that is the RNA primer synthesis. So many processes are included in it. So let us discuss the enzymes one by one. The most important enzyme is the DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase. So first of all I will give you the list, then I will discuss their function. The second one is the helicase. Then single strand binding protein. So this enzyme is not given in your textbook, but still I will tell you, because this enzyme is very important to maintain the unwinding of the DNA or the DNA helix. The next is topoisomerase. Fourth one is topoisomerase or gyrase. Then fifth one is DNA ligase. And sixth one is primase. Okay, so these are the main enzymes which are involved in the process of DNA replication. So let us discuss the enzyme one by one. So let me first discuss the DNA dependent RNA polymerase. What is its function? So I am going to rub this. So I will discuss the first one. Okay, so the DNA dependent DNA polymerase. First of all I will tell you why it is called DNA dependent DNA polymerase. Because this is DNA polymerase because it polymerizes the nucleotide chain. इसका मतलब है कि ये एक DNA स्ट्रैंड को पॉलीमराइज, पॉलीमर ऑफ व्हाट? पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotide. So it makes a polymer of deoxyribonucleotides. That's why it is known as DNA polymerase. But why DNA dependent? Because it can polymerize a deoxyribonucleotide chain only when a pre-existing DNA is present. Suppose से ये एक DNA strand है, तभी जाकर ये एंजाइम दूसरा DNA strand बनाएगा by adding the deoxyribonucleotide. ये सब
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ये एक कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बनाएगा इसका. सो दिस इज सपोज से द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड and this is the new strand. So how the new strand will be synthesized by this enzyme? Only when this DNA is present, which is known as template DNA, जिसको कहा जाता है template DNA. अगर template DNA present है तभी ये enzyme उसका एक complementary strand बनाएगा by polymerization of the deoxyribonucleotide. That's why the name is DNA dependent DNA polymerase. I think it is clear to you. Now its role. इसका function क्या है? So let me write down. You also children please note down the function of this enzyme. So this enzyme catalyzes the polymerization of deoxy. The enzyme catalyzes the polymerization of deoxyribonucleotides by using a DNA टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब क्या है बच्चों? टेम्पलेट मतलब द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अपॉन व्हिच अनदर डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड कैन बी सिंथेसाइज्ड. जिन डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जिन डीएनए स्ट्रैंड को यूज करके आपका कोई नया डीएनए हो या फिर आरएनए सिंथेसाइज होता है तो उसको कहा जाता है डीएनए टेम्पलेट. ओके, सो दिस enzyme is very efficient and within a short period of time it can polymerize a large number of nucleotide. Okay, and for example children, I would like to tell you here the DNA of E. coli consists of 4.6 into 10 to the power 6 base pair. This is in case of E. coli. Okay, to polymerize this length of, you know that always the length of the DNA is measured in terms of base pair. So 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर लेंथ का डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स लगता है. ये एंजाइम को ओनली 18 मिनट्स में ये इतना बड़ा डीएनए को सिंथेसाइज कर देता है. सो दिस शोज द एफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम. इस एंजाइम का ये है एफिशिएंसी है. ओके, नाउ इसका मतलब क्या है? 18 मिनट्स में अगर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर सिंथेसाइज इतना लेंथ है 18 मिनट्स में कर रहा है तो उसका 1 मिनट में एवरेज यू कैन से द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इट इज नॉट नॉन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट स्टिल हमको इतना जानना जरूरी है कि अगर 18 मिनट्स में इतना बेस पेयर सिंथेसाइज करता है तो पर सेकेंड एवरेज ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली कितना बेस पेयर सिंथेसाइज करता है? इट इज अबाउट 2000 बेस पेयर. ठीक है, सो an average of approximately 2000 base pair are that is synthesized per second. So an average of approximately 2000 base pair per second are synthesized.
So this work is also done at high rate of accuracy, at high rate of accuracy. ठीक है, देखो बच्चों, इसका दो एडवांटेज क्या है, ये एंजाइम का दो सिग्निफिकेंस क्या है. फर्स्ट है कि दिस excuse me, this enzyme is faster at its rate of synthesis. That means it is very efficiently synthesizing average approximately 2000 base pair per second. दूसरा चीज क्या है, with high rate of accuracy, उसका accuracy भी हाईएस्ट है. ठीक है, ये दो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज. ऑफन इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम कि व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो ये दो आपको लिखना पड़ेगा. एक है इट इज वेरी एफिशिएंट एंड सिंथेसाइजेस द और पॉलीमराइजेस द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन in and about 2000 base pair per second. Okay, second चीज क्या है, at high rate of accuracy. Okay, so I think it is clear to you. So children, remember these polymerase enzyme, the DNA dependent polymerase enzyme, it is not same in both eukaryote and prokaryote. So in prokaryote three types of polymerases are there: polymerase 1, 2 and 3. But in case of eukaryote, some different type of polymerases are present and they are named as alpha, beta, gamma, delta. That is alpha, beta, gamma, then delta, or sorry, I'm writing the wrong. I mean delta and then epsilon. Okay, so these are the enzymes and their function is also little bit different from that of the prokaryotic polymerase. But here we will discuss about the prokaryotic polymerase only. So the polymerization or the replication process in eukaryote is more complex than that of the prokaryote. But here we will be discussing the prokaryote one. Okay. Then the next enzyme क्या था बच्चों? I think it is clear to you. Then the next enzyme, second enzyme is helicase. The name itself indicates that it causes opening of the helix of the DNA. It causes unwinding of the DNA helix. DNA helix को अनवाइंड करता है यानी ओपन करता है. ठीक है. So that is suppose say this is the DNA strand. As you know that two strands are wrapped around each other. So here suppose say the enzyme acts here. यहाँ पर आपका एंजाइम एक्ट कर रहा है. You know that between the two strands the hydrogen bonds are present. So this enzyme will help in unwinding the DNA strand locally. That means जहाँ पर ये अटैच होगा वहीं पर ही ये ओपन करेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ से अटैच हुआ तो ये एंड से ओपन करना शुरू करेगा. ठीक है. So it will cause local unwinding. तो ये कैसे ओपन होगा देखो बच्चों, ये ऐसा है ना स्ट्रक्चर. ओके. तो ये यहाँ से खुलना शुरू होगा. देखो यहाँ पर बाइंड हुआ तो यहाँ से
ये धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे खुलना शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। ठीक है, और ये एंजाइम जैसे जैसे मूव करता जाएगा तो वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इसका ब्रेक होता जाएगा। और ये जो हेलिक्स है वो ओपन होता जाएगा। सो इन दिस वे द डीएनए हेलिक्स इज अनवाइंडेड ड्यू टू the breaking of the hydrogen bond. Okay, so it causes unwinding of the DNA helix by breaking the hydrogen bond present between the two complementary strands. ओके, सो समझ में आ गया आपको ये किस तरह ये सेपरेट करता है दो स्ट्रैंड को बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज टोपोआइसोमरेज। Yeah, I forgot to tell you one more thing. I have told you about the enzyme single strand binding protein. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, SSB। तो इस एंजाइम का मैं फंक्शन आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो हेलिक्स है, मान लो ये हेलिक्स यहाँ पर ओपन हुआ ड्यू टू द एंजाइम हेलिकेज। यहाँ हेलिकेज एंजाइम है और ये हेलिकेज एंजाइम ऐसे मूव कर रहा है, जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा ये ऐसे खुलता जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका एक और भी, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस है एंड दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट अगेन दीज टू स्ट्रैंड विल वाइंड। दोनों फिर से वाइंड होने का चांस है, ये फिर से वाइंड हो जाएगा। आप देखो कोई एक आप जैसे सुतली मिलता है ना आपका बाजार में, उसका आप खोलने की कोशिश करोगे, एक तरफ से खुलते जाओगे तो दूसरी तरफ से फिर से ये नीचे से ऐसे मुड़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए जैसे ही हेलिकेज एंजाइम ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, तुरंत यहाँ पर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर कुछ प्रोटीन, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड में बाइंड हो जाता है ताकि ये फिर से अनवाइंड, फिर से वाइंडिंग ना हो जाए, फिर से ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ना कर दे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस एंजाइम। सो दीज आर द SSB। और ये हेलिकेज यहाँ से खुलता जा रहा है, हेलिकेज ऐसे खुलता जा रहा है और जैसे जैसे खुलता जाएगा तो सिंगल स्ट्रैंड, और जहाँ से खुलेगा वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लग जाएंगे ताकि ये फिर से आपस में बॉन्ड बना ना सके, ताकि ये खुला रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। The next is the topoisomerase. Topoisomerase. This is also called gyrase. Okay. So children, this enzyme is it releases the tension in the DNA strand created by unwinding of the DNA. So इसका मतलब हम और सिंपल लैंग्वेज में ये भी बता सकते हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ द
डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये हेलिक्स जो है, हेलिकेज इसको ओपन कर रहा है, ठीक है, ओपन कर रहा है, लेकिन इसका जो टेंशन है, देखो आप कोई धागा है उसको हम खोलने की, आपने दुकान में देखा होगा, जब कोई पैकेट को बांधने से पहले दुकानदार क्या करता है, आपका जो रस्सी होता है ना, वो रस्सी को पहले ढीला करता है, ऐसे ऊपर से ढीला करता है, फिर उसको तोड़ता है। ठीक है, ऐसे ढीला क्यों करता है? क्योंकि ये जो वाइंडिंग के जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो टेंशन है, उस टेंशन को वो जो सुतली का जो टेंशन है ऊपर से जो ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको वो ढीला करता है ताकि वो लूज हो जाए, उसके बाद उसको तोड़ सके। इसी तरह यहाँ पर हेलिकेज तो इसको ओपन करेगा ही, लेकिन हेलिकेज को और थोड़ा काम करने में सहाय होता है आपका टोपोआइसोमरेज। सो टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर इसका जो टेंशन है, ऊपर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो टेंशन है, उसको रिलीज कर देता है ताकि हेलिकेज उसको आसानी से खुल सके। ठीक है, जैसे जैसे जाएगा तो उसको खुल सके। तो ये हो गया उसका टेंशन रिलीज करने का काम, यानी अनवाइंडिंग में ये हेल्प कर रहा है। अभी वाइंडिंग में ये कैसे हेल्प करता है बच्चों, देखो जैसे जैसे आपका रेप्लिकेशन होता है, देखो ये हो गया, हम रेप्लिकेशन प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जब रेप्लिकेशन इधर से शुरू होता है, शुरू होके ऐसे प्रोसीड होता है और दूसरे स्ट्रैंड में ऐसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, ये दूसरा स्ट्रैंड फिर से इधर से जैसे जैसे ये सिंथेसिस होता जाएगा, ये ऐसे वाइंड होता जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ ऐसे वाइंड होता जाएगा। सो ये जो है वाइंडिंग, दैट इज ऑल्सो कैटलाइज्ड बाय योर टोपोआइसोमरेज। देखो ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम जब इनिशिएशन होता है, शुरू होता है रेप्लिकेशन, हेलिकेज का काम को आसान करने के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन खत्म होता है तब उसको वाइंडिंग करने में हेल्पफुल होता है। सो इसका डुअल फंक्शन है। सो दिस इज द रोल ऑफ टोपोआइसोमरेज। द नेक्स्ट इज डीएनए लाइगेज। द नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। लाइगेज, लाइगेशन मीन्स जॉइनिंग। सो देखो बच्चों, इसका काम है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको जॉइन करना। देखो ये छोटे फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, उसका एक तरफ OH होता है, ठीक है, 3 प्राइम एंड होता है, और एक तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट एंड होता है। सो इसी तरह हर एक स्ट्रैंड का छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट होते हैं, उस फ्रैगमेंट को जोड़ने में आपका हेल्प करता है लाइगेज। सो लाइगेज एंजाइम हेल्प्स इन जॉइनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो इट हेल्प्स इन जॉइनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में हेल्प करता है। और ये काम कब होता है, वो हम जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे पूरा मैकेनिज्म, तभी हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, बस फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि लाइगेज का काम है टू जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स, और डीएनए फ्रैगमेंट का एक 5 प्राइम एंड के साथ 3 प्राइम एंड को ये जोड़ेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट एंजाइम इज प्राइमेज। दिस प्राइमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ये प्राइमर, अब जैसे देखो आप घर में घर बन गया, अभी आप क्या करोगे, उसमें रंग देना चाहते हो। रंग देने से आप डायरेक्ट अगर रंग दोगे तो उसमें अच्छे से नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो चट्टान है, जो सरफेस है, दैट सरफेस इज वेरी रफ, और उसमें आपका जो रंग का जो क्वालिटी होता है, जो पेंट का क्वालिटी है, वो डायरेक्टली आपका दीवार के ऊपर नहीं लग सकता। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक प्राइमर यूज करना पड़ता है।
ताकि वो प्राइमर के बाद हम अगर वो पेंट को दे तो अच्छे से लगेगा और ज़्यादा ड्यूरेशन तक वो रहेगा। उसी तरह हम आयरन का जो कोई मान लीजिए आप विंडो का फ्रेम बना रहे हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें प्राइमर पहले देते हैं, उसके बाद उसमें आप पेंट देते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपका जब डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, देखिए ये है डीएनए का स्ट्रैंड जो कि यहाँ पर अनवाइंड हो चुका है और यहाँ आपका सिंथेसिस होना है दूसरा स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। तो ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस कैसे होगा? एक्सक्यूज मी, ये अपने आप ऐसे नहीं हो सकता। इसको हमेशा क्या चाहिए? एक फ्री OH एंड चाहिए। ये सिंथेसिस का काम कौन करेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इस एंजाइम को, ये एंजाइम है लेकिन ये एंजाइम जैसे ही डीएनए खुल जाएगा ये आकर अपना काम शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। इसको क्या चाहिए? एक फ्री OH एंड चाहिए, इसको एक फ्री OH एंड चाहिए। सो दैट्स व्हाई देयर इज एन एंजाइम नोन एज प्राइमेज जो कि एक छोटा सा फ्रैगमेंट बनाता है आरएनए का। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज का काम क्या है? इट फॉर्म्स द आरएनए प्राइमर। ये क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर बनाता है। देखो यहाँ आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना देता है, ऐसे बनाता है ताकि इसका ये जो OH एंड हो इस तरह फ्री रहेगा। OH एंड फ्री रहने से क्या होगा? अभी तुरंत ये एंजाइम आकर यहाँ एक्ट करने लगेगा, ठीक है, एंड इट विल कंटिन्यू द सिंथेसिस। ओके, तो ये सिंथेसिस होगा। तो आरएनए प्राइमर का काम क्या है? टू सिंथेसाइज RNA primer to provide free OH group for DNA polymerase. Okay. So children, these are the this is the function of primase enzyme, and these are the 6 most important enzymes which help in DNA replication. Okay children, so in next class we will discuss the mechanism of DNA replication. Okay, so thank you very much.